کھولتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے، اور عہد نامہ جدید میں سے پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب، پاسبانی خطوط میں سے جو پاسبانوں کو خطوط لکھے گئے اس میں سے پہلا خطوط پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب، اور ہم اس کی چوتھی اور پانچویں آیت کو خدا کے کلام میں سے آج کرسمس کی خصوصی عبادت میں دیکھیں گے۔ اور آج کا عنوان کے مطابق کرسمس میں خدا کی چاہت اور سب آدمیوں کی نجات ہے۔ پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اور چوتھی آیت میں آئیے کیا لکھا خدا کے کلام میں، وہ چاہتا ہے، کس کی بابت ہو رہی ہے؟ خدا کی۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ کیا کہیں؟ سب آدمی نجات پائیں۔ ایک ادا نہیں، وہ چاہتا ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ کیا کریں؟ نجات بھی پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ آگے، کیونکہ خدا ایک ہے۔ خدا کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ آمین۔ اور نہ کوئی خدا کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی خدا کی ذات کا لیول لے سکتا ہے، پر جہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، اور اس میں سے نکلنے والا کلمہ بھی ایک ہی ہے۔ آمین۔ کیا ہے اس میں سے نکلنے والا کلمہ؟ دیکھیں، خدا، کیونکہ خدا ایک ہی ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں، کس میں جی؟ خدا اور انسان کے بیچ میں، یعنی خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں کیا جی؟ خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا بھی ایک ہے اور درمیانی بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ آگے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، کیا ہے؟ مسیح یسوع کیا ہے؟ جو انسان ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ عنوان کیا ہے؟ کرسمس میں خدا کی چاہت اور سب آدمیوں کی نجات۔ اونچی بولیے، کرسمس میں خدا کی چاہت آدمیوں کی نجات اور سب آدمیوں کی کیا ہے؟ نجات ہے۔ یہ جو خدا کی چاہت ہے نا، یہ چاہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ چاہت نا انسان کو نا بڑی چیزوں میں دھکیل دیتی ہے۔ جہاں چاہت ہو نا، تو یہ جو چاہت ہے نا، یہ بڑا کچھ انسان سے کروا دیتی ہے۔ چاہت جہاں ہو جاتی ہے، چیزیں جہاں ہو جاتی ہیں، تو کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا تھا۔ خدا نے انسان کو تخلیق کیا تھا، اور یہ جو خدا کی چاہت ہے، اور چاہت ہو بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس نے، دیکھیں، باقی جب خدا نے چیزیں تخلیق کر رہا تھا نا، تو خدا کلمہ منہ سے بول رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا؟ کلمہ منہ سے بول رہا تھا۔ ہاتھ نہیں خدا نے کسی چیز کو بھی لگایا، ہاتھ چیز کو نہیں لگایا، کہتا تھا ہو جاتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ پانیوں کے اوپر کیا ہو، زمین ہو تو کیا ہو گئی؟ زمین ہو گئی، خشکی ہو گئی۔ یعنی اس نے ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے کلمے سے، کلام سے تخلیق کی۔ یہ ساری چیزیں خدا ایک آفس میں بیٹھ کے جیسا بندہ آرڈر نہیں کر رہا ہوتا، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو ہے۔ پر یہ چاہت خدا کی کوئی نئی چاہت نہیں ہے۔ یہ چاہت خدا نے، کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا تھا، انسان کو بنایا تھا، اس کے اندر دم پھونکا تھا، تو پھر خدا آفس سے اٹھا۔ تے یاد رکھنا
ਇਹ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਲੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मिट्टियों मिट्टी ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ? यानी बाकी सारे काम खुदा एक ऑफिसर की तरह कर रहा है। हो जा, बन जा, ऐसे हो जा, वैसे हो जा, यानी वो सारा हमें एक तख्लीक का हमें जो सिलसिला नजर आ रहा है, खुदा चीजें बनाने का जो खुदा का तरीका नजर आ रहा है। पर कहता है जब खुदा इंसान को बनाने लगा है तो पहले खुदा ने क्या किया? मिट्टी, यानी खुदा ने पहला अपने हाथ और फिर इंसान को बनाया है। और इंसान की फितरत ये रही है कि जब ये बनाया गया था, ये तब भी खुदा को क्या कर किसने किया? और आज भी अपने कामों से याद रखिएगा। अब तो पता है जब इंसान ने पहला गुनाह हुआ ना तो उसका इल्जाम किस पर डाला गया था? कहता जे तू ना देंदा ते आ नहीं होना। यानी पहला इल्जाम, यानी उसने इस गुनाह का जो वजह बयान की कि खुदा तूने मुझे दी तो ये हो गया ना। यानी दूसरे सिलसिले में ये कह रहा है कि भाई ये देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये खुदा की चाहत को जरा समझिएगा और फिर इस बात को भी समझिएगा कि ये निजात क्यों जरूरी है। ये खुदा की चाहत में जो निजात है सब आदमियों के लिए, ये जो क्रिसमस का मैसेज है, क्रिसमस का मैसेज ये नहीं है। अच्छी बात है, हम भी रात को घूम रहे थे, हम भी रात को चरनियों में गए हुए थे, हम जाते हैं, साल जाते हैं कि होना चाहिए। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्रिसमस जो है हम कई दफा खुदा की चाहत को पीछे छोड़ देते हैं, इस निजात के पैगाम को पीछे छोड़ देते हैं, हमेशा की जिंदगी के रेवलेशन को पीछे छोड़ देते हैं और बहुत सी चीजें आगे आ जाती हैं। यानी ये क्रिसमस क्या है, इसका रेवलेशन क्या है, इसके अंदर पैगाम क्या है, इसके अंदर खुदा चाहता क्या है और खुदा की चाहत क्या है। कलाम कहता है वो चाहता है कि सब आदमी क्या करे? निजात पाए। क्या चाहता है? सब आदमी निजात पाए। और फिर वो निजात के लिए, इस काम के लिए एक दरमियानी को अपने बीच में रखता है, क्योंकि इंसान जो था, जो खुदा की सूरत पर बनाया गया था, खुदा की शबीह पर बनाया गया था, जिसको खुदा ने अपनी चाहत के साथ रखा था, जिसको खुदा ने अपनी मोहब्बत के अंदर बनाया था, ये इंसान जो है ना, कलाम ये कहता है कि फिर ये इंसान ने जब नाफरमानी कर ली, इसने गुनाह कर लिया, खुदा की हुक्म अदूली कर ली, और फिर हुक्म अदूली करने के बाद जो था, फिर ये अपने मुकाम से हट गया, अपने लेवल से हट गया, और जिस जगह पर खुदा ने इसको रखा था वहां से हटने के बाद फिर इसकी हालत क्या हो गई, फिर इसका मुकाम क्या हो गया। यानी खुदा की जरा चाहत देखिए कि जब इंसान गुनाह के अंदर गया, खुदा इससे पहले इसे बाग़े अदन से निकालता, खुदा अपनी चाहत का इज़हार उस वक्त भी इसके साथ करता है जब खुदा सजाएं दे रहा, साथ एक होप भी दे रहा है। पहला बाग़े अदन जो कढ़दा, हुजूरी जो कढ़दा, कहंदा है हाँ सजा मैं जरूर दूंगा, पर मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत अपनी जगह है। हाँ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा निजात हिंदा पैदा करूंगा, एक औरत की नस्ल से आएगा, एक कुंवारी हामला होगी, और खुदावंद यीशु मसीह को एक तशबीहाती तौर पर, हकीकी तौर पर जो है एक इंसान को उम्मीद दे दी गई, एक होप दे दी गई। क्या कर दी गई? और ये याद रखिएगा, ये जो होप थी ना, इसने दुनिया के अंदर ये जो निजात है, क्योंकि औरत को कहा गया था कि वो निजात पाएगी। क्या करेगी? किसके वसीले से निजात पाएगी? बेटे के वसीले से। किसके वसीले से? इसलिए जब उसका पहला हवा का बेटा हुआ ना, वो समझी कि शायद रास्ते खुल गए हैं, पर उसको ये नहीं पता था कि इंसान जो था वो कभी भी औरत से, यानी औरत और मर्द से पैदा होने वाला कभी कोई निजात दहिंदा नहीं हो सकता।
क्योंकि उसके अंदर जो फितरत थी, उसके अंदर, क्योंकि कलाम इस बात पर जोर देता है ये निजात, सब आदमी निजात क्यों पाए, ये आदमियों को निजात की जरूरत क्यों है। कलाम इस बात पर जोर देता है क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में रोमियो 3:23 के अंदर जरा निकाल लीजिए, रोमियो 3:23, रोमियो के नाम खत और उसके 3 बाब की 23 आयत में क्या लिखा है, जल्दी से कोई भी पढ़ने में मददगार हो। इसलिए सबने गुनाह किया, क्या कलाम कहता है, सबने गुनाह किया। बोले बोलो जी आवाज में, इसलिए सबने, और क्या हुआ, और खुदा के जलाल से इंसान क्या हो गया, महरूम हो गया। यानी सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया। और जब वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया, 3 बाब की 10वीं आयत से पढ़िए क्या लिखा है, फिर इंसान की हालत, कि निजात की जरूरत सब आदमियों को क्यों थी, क्योंकि निजात की वजह क्या थी, जरा पढ़िए क्या वजह थी। चनाचे लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, चनाचे लिखा है कोई रास्तबाज आगे, यानी कोई सब आदमी, यानी यहाँ लिखा है एक आदमी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई एक भी नहीं। इसीलिए लिखा खुदा चाहता है क्या करे, सब आदमी क्या करे, निजात पाए, एक भी नहीं। आगे, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, कोई खुदा का तालिब, यानी इंसान जो था जब वो जलाल से महरूम हो गया तो फिर उसकी समझ भी चली गई। खुदा के साथ जो उससे गुफ्तगू करता था, खुदा के साथ जो मोहब्बत करता था, जो खुदा का वेट करता था, आज छोपड़े आवे है। यानी इंसान के अंदर जो चेंजिंग पैदा हो गई, जो तब्दीली पैदा हो गई इंसान के रवैये में, इसका जो गुनाह का फैक्ट था, इसकी जो हालत थी, इसके अंदर जो चीजें डेवलप हो गई, वो क्या हो गया, उसकी समझ भी मर गई। क्या हो गई थी, समझ में आ गई। वो जो कामिल बनाया गया था अब वो कामिल ना रहा, आगे नेक ना रहा। आगे, कोई खुदा का तालिब नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह है, सब क्या हो गए, गुमराह है, आगे, सब के सब निकम्मे बन गए, और सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। वो चाहता है सब आदमी निजात पाए, क्योंकि कोई एक रहा ही ना जो रास्तबाज होता, जो कामिल होता, जो खुदा का तालिब होता, जो भलाई करता। क्योंकि गुनाह ने क्या किया, गुनाह ने इंसान की फितरत, इसकी सोच, इसके माइंड और इसके दिल को बदल के रख दिया। इसका दिल चेंज हो गया, इसका रवैया चेंज हो गया, और खुदा ने ये जो इसकी जो फितरत थी उसके अंदर गुनाह आ गया, इसके ब्लड के अंदर गुनाह आ गया। क्योंकि देखिए खुदा ने तख्लीक का काम तो पहले भी किया था, पर तख्लीक के यानी खुदा ने जब नूह के जमाना के अंदर खुदा ने देखा कि दुनिया में क्या हो गया, बदी बहुत बढ़ गई है, हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। क्या कर लिया है, अपना तरीका। और खुदा ने क्या किया, खुदा ने फैसला किया वो एक दफा नई तख्लीक करेगा। क्या करेगा, एक दफा नहीं करेगा। और खुदा ने नई तख्लीक की, और नई तख्लीक किसके खानदान से की, नूह के। यानी एक खानदान खुदा ने बचा लिया और बाकी तमाम दुनिया का क्या हो गया, खात्मा हो गया। अब नूह बचा तो लिया गया, पर असल में जो फितरत थी ना वो ना बदली, क्योंकि नूह तो बच गया, तख्लीक भी हो गई। यानी ये जो तरीका था खुदा ने इसको आजमाया, इसको दुनिया के अंदर अप्लाई किया, लेकिन इसने ये किया कि इंसान जो था वो नूह बच गया, फिर उससे आने वाली जो नस्ल पैदा हुई, फिर वही बदी, फिर वही गुनाह, फिर वही चीजें, फिर वही चीजें, और फिर इंसान जो था ना, इंसान फिर चालाक हो गया।
انسان سمجھدار اپنی طرف سے سمجھدار یعنی خدا کی نظر میں سمجھدار نہیں اسی کئی دفعہ نا اپنی نظر سے بڑی سمجھدار ہونے اسی بڑے سمجھدار ہونے اسی زمین تے رہن واسطے بڑیاں فکراں کرنے کہ سونا چھت بھی ہونا چاہیے چنگا گھر بھی ہونا چاہیے پر ہم سمجھدار نہیں ہیں کیونکہ سمجھدار یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ نے کہاں پر جانا ہے آپ نے مرنے کے یہ انسان جو تھا وہ سمجھدار تو ہو گیا یعنی اس نے زمین کے اوپر تو سمجھدار ہو گیا پر اپنی آخرت کے بارے میں نہ سمجھ بن گیا اور کلام یہ بیان کرتا ہے پھر وہی نسل جو نوح سے نکلی پھر بادشاہ قومیں پھر بعد میں کیونکہ سیکنڈ جنریشن آ گئی نا پھر اس کے بعد پہلی جنریشن کو تو خدا نے مکمل طور پہ تمام دنیا میں خدا نے پانی بھیجا اور خدا نے کیونکہ انسان کو خدا نے تخلیق تو کی پر یہ تخلیق کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوئی اس کے بعد پھر وہی کام ہو گیا بدی بھی بڑھنا شروع ہو گئی گناہ وہی رہا فطرت وہاں رہی مائنڈ وہاں رہا کیونکہ گناہ نے انسان کے دل کو ہلے بھاگ اور لا علاج کر دیا تو کئی دفعہ نا اسی غلط دعاواں بہت ساری ایسے دعاواں نے جنہاں کلام تو رونگ لیا کئی دفعہ کہنے خدا ساڈا دل صحیح کر دے یاد رکھنا بندے دا دل کدی نہیں صحیح ہوندا جب تک خدا ہمیشہ دل نہیں صحیح کرتا خدا نیا دل دیتا ہے ہیلیلویا کیا کرتا ہے خدا اور جدا نواں دل نہیں نہ ہوندا اودا نواں رویہ بھی نہیں ہوندا میں سمجھتا ہوں سچی توبہ پتہ کیا ہے جب کسی کا نیا دل ہو جائے اور کسی کا مائنڈ بدل جائے کیا ہو جائے ذہن بدل جائے یہ کلام میں لکھا نا وہ ہمیں نئی عقل اور نیا دل عطا کرتا ہے آمین کیونکہ سمجھ جیڑی ساڑی کو سمجھ سی وہ سمجھ وہ ناقص تھی وہ صرف دنیاوی چیزوں کے اندر تھی وہ دنیاوی خواہشوں کے اندر تھی وہ صرف وہی چیزیں جو آنکھوں کو دکھائی دیتی ہیں اور کانوں کو سنائی دیتی ہیں ان تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اس لیے خدا نے یہ طریقہ تو کیا پر یہ طریقہ جو تھا یہ پھر انسان نے بھی اپنے بڑے طریقے ڈھونڈے انسان نے بھی بڑے اپنے لیے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی بڑا اپنے آپ کو سیٹنگ کرنے کی کوشش کی انسان بھی سمجھدار ہو گیا اور یہ جو انسان کی سمجھداری تھی نا یہ مذہب کی وجہ بن گئی کیا بن گئی اے انسان کی سمجھ کی بن گئی بولے مذہب کی دین کی وجہ بن گئی یعنی ہر شخص نے خدا سے خدا کے کیونکہ یہ انسان کو نجات کی اس لیے ضرورت تھی کیونکہ وہ موت کے اندر تھا وہ گمراہی کے اندر تھا وہ خدا سے دور ہو گیا تھا وہ برگشتہ ہو گیا تھا وہ اپنی راہ سے مڑ گیا تھا وہ خدا کی وہ سزا کے نیچے تھا اور وہ چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ خدا مجھے مل جائے مجھے روحانیت مل جائے مجھے خدا کا دیدار ہو جائے یعنی وہ اپنی سمجھ کیسے یہ جو انسان کی سمجھ ہے نا یہ نئے مذاہب کی وجہ بنی اور انسان نے جو ہے اپنے طریقوں سے نجات یعنی انسان کے طریقے نجات کے اس کا مذہب ہوتے ہیں کیا جی انسان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے اس کا کیا ہوتے ہیں یعنی کوئی بندہ خدا سے غضب سے بچنا چاہتا ہے قربت خدا بندی کا تجربہ کرنا چاہتا ہے اور خدا کی حضوری میں اس شکائنہ میں اس باغ عدن میں جہاں سے وہ نکالا گیا تھا اگر پھر واپس آنا چاہتا ہے یعنی انسان نے بڑی سٹرگل کی انسان نے بڑی کیونکہ پھر یہ جو تھا نا نوح کے طوفان کے بعد دنیا کا میپ بھی بدلا زبانیں بھی بدلی کیونکہ پہلے جو روڈ میپ تھا کیونکہ سب کچھ نیا بن گیا یعنی آپ سمجھ لیں سب کچھ زیرو کے اوپر آ گیا سب علاقے زیرو کے اوپر آ گئے سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ جس طرح پہلے زمین تھی خدا نے بنائی تھی شروع میں اسی طرح زمین بن گئی سارے علاقے نئے سارے محلے نئے ہر ایک چیز جو ہے وہ نئی بن گئی جب یہ چیزیں نہیں ہو گئی سب کچھ نیا ہو گیا پر مسئلہ کیا تھا بندہ بڑھانا ہی چاہیے چیزاں کی ہو گیا تو بندہ تو بندہ بڑھانا سی تے بڑوں نے کام نہیں کی ہو گئے بڑھانے کئی دفعہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں پر بندہ نہیں بدلتا ہے یہ ہوتا ہے تو انسان جو تھا وہ چیزیں تو نہیں کر لیتا ہے
पर वो खुद को चेंज नहीं कर सकता, खुद को तब्दील नहीं कर सकता था। वो बड़ी स्ट्रगल करने के बावजूद भी, बड़ी चीजें करने के बावजूद भी वो खुदा का, कुल खुदा ने इंसान को जो है खुदा ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कोशिश की कि इंसान जो है, खुदा ने एक अंबिया का सिलसिला शुरू किया। और कलाम में लिखे, इब्रानियों के खत में क्या लिखा है, खुदा हिस्सा बा हिस्सा, तरा बा तरा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा। हालेलुया। क्या करता रहा? तरह तरह नबियों की मार्फत। अब खुदा ने हर तरह से, यानी खुदा ने जो खुदा की चाहत थी, खुदा नहीं चाहता था कि इंसान मर जाए, खुदा नहीं चाहता था वो हलाक हो जाए, खुदा नहीं चाहता था वो मुझसे दूर, यानी ये सिर्फ इंसान के अंदर नहीं ख्वाहिश के मुझे खुदा की हुजूरी मिले, ये खुदा के अंदर भी ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ खुदा मोहब्बत करता है। आमीन। एक ख्वाहिश दोनों पास है कि ये खुदा वाले भी है ते इंसान वाले भी सी। अब ये जो खला बन गया था, ये जो गायब बन गया था, ये जो कह सकते हैं कि बीच में जो आ गया था, अब खुदा चाहता ये था, यानी हम सीख रहे हैं क्रिसमस में खुदा की चाहत और इन सब इंसानों की निजात है। आमीन। अब उसे निजात की जरूरत थी, उसे एक निजात से मुराद ये नहीं है, निजात से उसे एक नए ज़हन की जरूरत थी, उसे एक नए इंसान होने की जरूरत थी, उसे इस मौत से, गुलामी से निकलने की जरूरत थी जिसके अंदर वो जकड़ा गया था। वो हालत, वो हालात जो गुनाह ने उससे कर दिए थे। निजात का ये मतलब है, कई दफा से कहने हैं असी निजात याफ्ता ते सिगरट ही छड़ दे नहीं ते गाला असी छड़ दे नहीं, असी निजात याफ्ता च। ये निजात नहीं है भाई, ये कौन सी निजात है? निजात का मतलब समझिए कलाम में से, इन्हों बपतिस्मा दे देता है, इन्हें बपतिस्मा दे के निजात पा गया। जरूरी है बपतिस्मा, पर सिर्फ ये नहीं है कि चीजें नई और बंदा पुराना ही रह रहा है। खुदा निजात में हमें बदलना चाहता है। आमीन। पहले खुदा ने जमीन बदली और बंदा पुराना ही रखा है। अब खुदा ने क्या किया? बपतिस्मे में बंदा बदला। आमीन। पहले जमीन बदली, साफ पानी में नया करा दिया है, और बंदा क्या था? पुराना ही रह गया। ये निजात, रेवलेशन, ये क्या है? आज हम निजात पाना चाहते हैं, और चर्च का मसला यह है कि चर्च सिर्फ बीमारियों से निजात पाना चाहता है, चर्च सिर्फ दर्दों से निजात पाना चाहता है। मिलेंगी, क्योंकि यीशु मसीह के खून में कुदरत है। आमीन। और कलाम में लिखा है वो हमारी खताओं के सबब से कायल किया गया। आमीन। और उसके मार खाने से क्या पाई हमने? ये तो ईमान का हिस्सा है भाई। जहां ईमान वाले होंगे वहां मौजे होंगे। आमीन। लेकिन सिर्फ निजात का काम जो है वो सिर्फ यहीं तक महदूद हो गया है। पर खुदा जो क्रिसमस का पैगाम है, जो क्रिसमस का रेवलेशन है, जो खुदा की चाहत है, क्योंकि यीशु मसीह को जरा यीशु देखें, यीशु ने हमेशा खुदा की चाहत को पहला दर्जा दिया। यीशु के पास जब भी कोई बीमार आया तो यीशु ने क्या सिर्फ उसे बदली शिफा दी। यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। क्या हुए? क्योंकि जब तक ये गुनाह माफ नहीं होते, यानी निजात का जो मकसद था, जो निजात का खुदा का मंसूबा था, जो खुदा निजात में चाहता था, वो ये था कि खुदा जो है वो हमें सजा से रहा कर। निजात का मकसद ये है, निजात ये है कि कोई शख्स गुनाहों से रहाई पा जाए। आमीन। किसी का नया ज़हन हो जाए, नई सोच हो जाए, नया माइंड हो जाए। और कलाम ये कहता है कि खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से, खुदा नहीं चाहता था कि कोई मर जाए, कोई मौत में चला जाए, कोई हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाए, क्योंकि जहन्नम तो खुदा ने इंसानों के लिए बनाई नहीं थी। जहन्नम तो इंसानों के लिए खुदा ने, ये जहन्नम जो था, जिसे कलाम मुकद्दस में कहा गया है ना, उस इलाके को कहा गया है जो आलम रवा के दरमियान वाला हिस्सा जो था गड़ा है। क्या था गड़ा? ठीक है, कलाम में लूका के मुताबिक जो है। अब खुदा ने ये जो आग थी, ये जो गंधक थी, ये ते खुदा ने उन्हें फरिश्तियां से बनाई सी जिन्हें बगावत की थी, और आसमान तो थले पढ़ो बड़े चलाक सन।
انہاں گل ہے اسی کلے جائیے انہیں گلا ہون کام بداؤ. اور پھر اس نے شیطان نے کیا کیا؟ اس نے آدم کو، اس فطرت کو، انسان کو، خدا کی تخلیق کو اس طرف کھینچنا شروع کر دیا. اور پھر وہی سزا جو گڑائے ہوئے فرشتوں کے لیے تھی وہ انسانوں نے اپنے اوپر لے لیا. پر خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان جہنم کے اندر جائے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہاں پھینکا جائے جو ہڈونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. خدا نے پھر انسان کو شریعت دینا شروع کر دی. پر اس شریعت نے بھی کچھ انسان کو چینج نہ کیا، کیونکہ کرسمس ضروری تھا، کرسمس کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ کرسمس کے بغیر سب آدمیوں کی نجات ہو نہیں سکتی تھی. آمین. کیا نہیں ہو سکتی تھی؟ بولیے سب آدمیوں کی نجات. خدا نے شریعت دینا شروع کی تھی نا. رومیوں کھولے ذرا 8واں باب کھولے ذرا میرے ساتھ. تو خدا کے کلام میں رومیوں 8ویں باب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء خدا نے بھیجے. 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کے نہ کر سکی. کس کے سبب سے؟ یعنی مسئلہ یہ تھا، کلام بھی تھا، نبی بھی تھے، سب کچھ تھا، پر یہ جو جسم تھا نا یہ کمزور تھا. اس کے اندر جو تھا، اس کی انسان کے جو نیت تھی، جو انسان کا دماغ تھا، جو انسان کے اندر گناہ کا اثر تھا، یہ خدا کے کلام کی تکمیل انسان میں ہونے نہیں دے رہا تھا. اور اج کدی بھی اس بندے چ کلام اثر نہیں کر سکتا جیڑا اج بھی جسم چ کمزور ہے. کی ہے؟ اج بھی جیڑا پرانے جسم دے وچ زندگی کٹ رہا ہے، اج بھی جڑا پرانی حالت دے وچ زندگی کٹ رہا ہے، اج بھی جڑا پرانی انسانیت سے زندگی کٹ رہا ہے. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جسم سے کمزور ہو کر نہ کر سکی اور وہ خدا نے کیا، یعنی وہ اب یہ جو جسم تھا جس میں انسان بنایا گیا تھا، گناہ نے اس جسم کو کمزور کر دیا تھا. اور وہ قانون، وہ کلام، کیونکہ کوئی نیکوکار نہیں تھا، کوئی راست باز نہیں تھا، کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی زندگی دینے والا، کوئی خدا سے، کیونکہ جتنے بھی انسان تھے، جتنے بھی عورت سے پیدا ہوئے، وہ جسم کی کمزوری کے سبب سے کبھی خدا کے کلام کو فرما برداری نہ کر سکے، کبھی اس نجات کے کام کو نہ لے سکے، خدا کے اس اندر کلام کے اندر شہری کو نہ سمجھ سکے. لکھا ہے جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا. کیا؟ کس نے کیا؟ وہ خدا نے کیا. اور خدا نے کیا. اور کیا لکھا ہے؟ اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں، گناہ آلودہ حالت میں نہیں، اس میں بولے جسم میں، گناہ آلودہ جسم کی، یعنی وہ انسان جو گناہ آلودہ جسم کی صورت بن گیا تھا. یعنی یسوع مسیح گناہ کی حالت میں پیدا نہیں ہویا. داؤد کیا کہتا ہے؟ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، تے ہن یسوع آ گیا تے میں رہنا نہیں سائی ہے. جو یسوع مسیح آیا ادو تک تے میں سائی سا. پر کرسمس جو ہے یاد رکھیے وہ عیسائیوں کو صحیح بناتا ہے. ہیلیلویا، نیا بناتا ہے. یعنی خدا کا ذرا مائنڈ سمجھیے، یہ نجات ہے کیا؟ سب آدمیوں کو نجات کی ضرورت ہے. یہ نجات ہے کیا؟ نجات یافتہ ہے کون؟ نجات یافتہ کہتے ہیں کسے؟ کلام کے مطابق کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو انسان نہ کر سکا جسم کی کمزوری کے سبب سے. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو انسانی جسم میں بھیجا. یعنی جس طرح انسان ہوتا ہے اسی طرح خدا نے اسی صورت میں اپنے بیٹے کو بھیجا اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم کر دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں
बोलिए बोलिए, जो जिस्मानी है, जिस्मानी किस्म के ख्याल में रहते हैं। बंदा जिस्मानी हो तो ख्याल भी किए होंगे, लेकिन जो रूहानी है वो जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। क्या है? क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है, ना हो सकती है। यानी मसला यह था, कलाम भी था, शरीयत भी थी, अंबिया भी थे, पर मसला क्या था? इंसान में, इस जिस्म में। ये जो जिस्म था, ये जो गुनाह था, उस जगह पे कायम था। जरूर था कि फितरत चेंज होती, माइंड चेंज होता, बंदा चेंज होता, नीयत चेंज होती, पर जिस्मानी फिक्रें, जिस्मानी चीजें। इसलिए कलाम ये कहता है 8वीं आयत में, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, क्या है? तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। और क्योंकि शर्त के खुदा का रूह तुम में, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर मसीह तुम में है तो बदन के गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। हालेलुया। अब खुदा कर क्या रहा है? ये निजात कर क्या रही है? ये निजात हकीकत में ये है कि जब कोई, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी सोचों को चेंज करने के लिए आया था। आमीन। नीयत चेंज करने के लिए आया था, और हमें छुटकारा देने के लिए आया था, हमें आजाद करने के लिए आया था, हमें खुदा से मिलाने के लिए आया था। इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, क्योंकि इंसान जो है वो अपने तरीकों से कभी निजात नहीं पा सकता था। ये खुदा की चाहत है कि उसने क्रिसमस के वसीला से निजात का काम सब आदमियों के लिए किया है। आमीन। क्या किया है? सब आदमियों के लिए निजात का काम किया है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि इंसान जो था वो अपनी समझ से निजात पाने के कई तरीके ढूंढता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ बस थोड़ी देर ही रूहानी रहते हैं, पर जब हम पाक रूह के ताबे हो जाते हैं फिर हमारी सोचें बदलना शुरू हो जाती हैं। आमीन। अभी कई दफा ना कुटे कुटे रूहानी रहने, उन्हीं देर तक जरा है अंडरस्टैंड कीजिए। कलाम ये कहता है क्योंकि इंसान जो था वो कभी भी खुद को बचा नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? खुद को बचा नहीं सकता था। उसके पीछे कई वजह थी। वो नकम्मा बन गया, वो दूर हो गया, वो बरगश्ता हो गया, वो गुनाह के कब्जे में, वो गुलामी के कब्जे में, वो जिस्म की वीकनेस के कब्जे में। कई चीजें उसकी जिंदगी के अंदर थी, और उसकी जो रास्तबाजी भी थी, यानी जो ऐसारियां गल्ला हो गया, तो कलाम इस बात पर जोर देता कि फिर उसकी रास्तबाजी जो है ना वो भी फिर किसी काम की नहीं रही। याद रखिएगा, जब तक कोई चेंज नहीं ना होता तो उसके अच्छे काम भी कोई उसको फायदा नहीं दे सकता। क्योंकि जेडी नेकी इंसान जिस्म च करता है ना, एक नेकी हुंदी सी मसीह च कर देंगे, एक अही जिस्म दे विच कर रहे होंगे। ठीक है, ये जेडी जिस्म वाली नेकी है। ठीक है, क्योंकि ये कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। अगर आप जिसाया उसके 64 बाब की 6ठी आयत को देखें, क्या लिखा है? जिसाया 64, हाँ ओके, इसको क्लोज करते हैं। जिसाया 64 की 6 आयत, 64। और हम तो सबके सब ऐसे हैं। हम तो सब के सब ऐसे हैं। क्या? जैसे नापाक चीज, जैसे नापाक चीज, आगे, और हमारी तमाम रास्तबाजी जड़ी इंसान दी अपनी रास्तबाजी जड़ी है। आगे, नापाक लिबास की मानित, किसकी मानित है? नापाक लिबास, यानी इंसान दी अपनी रास्तबाजी की मानत है। बोले नापाक यानी केड़ी रास्तबाजी? अपनी रास्तबाजी। उन्हें अगला का मजमून है तो गल नहीं करांगे। अपनी रास्तबाजी। आगे, और हम सब पत्ते की तरह खुला जाते हैं, और हमारी बदकरदारी आंधी की मानत हमको। अब यानी इस्लाम ये कहता है कि इंसान की अपनी रास्तबाजी जो है, इंसान के अपने जो काम है, इंसान के जो अपनी चीजें हैं, याद रखिए वो कभी भी इंसान जो था वो निजात नहीं पा सकता था।
इंसान कभी खुदा के साथ दोबारा बहाल नहीं हो सकता था। इंसान कभी भी खुदा तक रसाई, खुदा की शिकायत तक नहीं जा सकता था। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यूहन्ना की इंजील 3:16 में क्या लिखा है? हाथों को उठा के बोलिए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हालेलुया, आवाज काट दे। खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या कर दिया जी? इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए क्या करे? कौन सी जिंदगी पाए? हालेलुया, आमीन। यानी खुदा, देखिए, खुदा ने अपना बेटा इकलौता बख्श दिया। यानी खुदा ने अपनी चाहत जो है, खुदा ने जो अपनी मोहब्बत है, वो अपने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर की। आमीन। और क्रिसमस में खुदा ने इस चाहत के अंदर जो है ना, इस चाहत का इजहार जो है ना, क्योंकि बंदे की जी चाहत होती है ना, फिर कुछ किसी न किसी तरीके ना जाहिर होती है। क्यों दी है? हम बता कोई चाह करे है तो कोई ना कोई तरीका होता है। चाहत ऐसी नहीं होती कि जी मेरी बड़ी चाहत है। चाहत, आप ये जो चाहत होती है ना, जब दिल से होती है ना, तो ये आपको मजबूर कर देती है कुछ करने के लिए, और हद से ज्यादा करने के लिए। ये चाहत जो है ना, क्योंकि खुदा चाहता था, और ये खुदा की जो चाहत थी कि क्या करें, सब आदमी क्या करें, निजात पाए, निजात का काम हो। ये जो पुराना बंदा है, अब खुदा जमीन नहीं बदल रहा, खुदा बंदा बदल रहा है। हालेलुया। और फिर ये गुनाह, ये देखें, यीशु मसीह को अगर अंडरस्टैंड कीजिए, लेकिन वो गुनाह औलूदा सूरत पर, यानी गुनाह की हालत में पैदा नहीं हुआ, गुनाह औलूदा सूरत में कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है। और कलाम में लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा है। हालेलुया। कैसे रहा है? अब निजात की जरूरत आदमी को क्यों थी? वो बरगश्ता हो गया था। बोलिए, वो क्या हो गया था? बरगश्ता हो गया था। वो खुदा तक अपने तरीकों से पहुंच रहा था। वो कई तरह के मज़ाहिब के अंदर, याद रखिएगा, ये इंसान की रास्तबाजी गंदे लिबास की मानंद थी। ये इंसान की रास्तबाजी उन पत्तों की मानंद थी जिहदे विच आदम छुप गया है अपने बना के। जिदों पता लगा ना मैं नंगा वां, उन्हें हुण अपने आप नूं ढक्कण वास्ते ना अपना तरीका बनाया। फिर उसने गजब से बचने के लिए बाबल का बुर्ज बना लिया। कभी उसने हाथ की बनाई हुई मूर्तें बना ली, कभी हाथ की बनाई हुई सूरतें बना ली, कभी किसी चीज तरफ चला गया, कभी किसी की तरफ चला गया। मेरी खुदा तक रसाई हो जाए, मेरी निजात हो जाए, मैं सजा से बच जाऊं, मुझे रूहानियत मिल जाए, मुझे हसूरी मिल जाए, मुझे वो दिल का इत्मीनान मिल जाए। क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान रूहानियत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कह रहे हैं? ओदी रूहानियत गलत है, सही है, बाबे मानदा है, पीर मानदा है, फकीर, यानी कितने किसी को मानते रहे ना, यानी इंसान किसी को मन, इंसान दुनिया जो है किसी को मनने ना हो नहीं सकता। उसकी फितरत में ये शामिल है, वो किसी ना किसी को मानेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि देखें, जो मछली है उसको पानी से बाहर निकाल दे, क्योंकि मछली की फितरत किसमें है? पानी में। तो खुदा इंसान की जो रूह है हमारे अंदर, वो कहां से निकली है? अब ये जो रूह है ना, जो खुदा ने हमें दी है, क्योंकि इसका तकाजा ये, इसे खुदा चाहिए, इसे हजूरी चाहिए, इसे इत्मीनान चाहिए। यानी उसका तरीका गलत हो सकता है, उसका अमल गलत हो सकता है, उसका अपना बनाया, उसकी अपनी रास्तबाजी, उसकी अपना तरीका कि वो नजात कैसे पाएगा, छुटकारा कैसे पाएगा, चेंज कैसे होगा। तब यानी कोई ऐसा शख्स नहीं है वो जो चेंज नहीं होना चाहता, कोई ऐसा शख्स नहीं जो तब्दील नहीं होना चाहता। हर शख्स चाहे जिंदगी में कोई जितना मर्जी गुनाहगार है, वो जिंदगी में हर गुनाह के बाद जरूर सोचता है, यार ये मुझे नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एहसास पैदा होता है
कहीं ना कहीं जाकर खुदा क्योंकि ये इंसान की फितरत के अंदर है, कहीं ना कहीं पर वो छिछोड़ा जाता है, कहीं ना पर उसके अंदर एक आवाज पैदा होती है, क्योंकि इंसान जो है उसका जो फितरत है, उसकी जो तख्लीक है वो खुदा से है, इसलिए उसके अंदर ये अमल पाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं पर वो जरूर जस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर वो जरूर मतवज्जा हो जाएगा। और क्या है कि इंसान जो था वो अपने तरीकों से निजात पाना चाहता था, पर याद रखिएगा क्योंकि इंसान जो था उसको एक ऐसे दरमियानी की जरूरत थी, ऐसे शख्स की जरूरत थी, एक ऐसा, क्योंकि देखो जिस बंदे को आप नहीं पता राह आते और की राह दसेगा है, जिन्हों आप नहीं राह पता मैं कितने जाना है, राह वही बताएगा ना जो राह जानता है। और वो जानता था जब यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमाने वाले थे, हमारे लिए दुख सहने वाले थे, उसने कहा तुम राह नहीं जानते। इंसान वो राह नहीं जानता था, इंसान अपनी बनाई हुई राहें जानता था, इंसान अपने बनाए हुए तरीके जानता था, पर याद रखिए जो खुद राह है वो जानता है। हालेलुया। और दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, वो राहें बताते रहे, वो चीजें बताते रहे, पर वह मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है जिसने खड़े होकर फड़मला ये ऐलान किया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आमीन। और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या है? कोई मेरे वसीला के बगैर। खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाए, पर खुदा भी एक है और खुदा के बराबर भी कोई नहीं हो सकता, खुदा के मुतबादल भी कोई नहीं हो सकता, ना कोई मूरत, ना कोई सूरत, ना इंसान की जो तख्लीक है वो खुदा हो सकती है, पर याद रखिए खुदा के बराबर वाकई ही कोई नहीं हो सकता, पर जो खुदा में से निकले वो खुदा ही होता है। हालेलुया। जो कलमा मुजस्सम हो वो खुदा ही कहलाता है, उसके अंदर वो सारी चीजें जो खुदा के अंदर थी वो मसीह के अंदर थी। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह देखिए वो फजल और सच्चाई से, किसे जी? अब ये जो हमारी नजात है ना, ये खुदा के फजल की बदौलत है। आमीन। और ये फजल हुआ किसके वसीला से? क्योंकि याद रखिए फजल यीशु ही है, और यीशु जहां जहां होगा वहां फजल होगा। आमीन। हालेलुया। जहां यीशु है, मुकद्दसा मरियम को क्या कहा गया? तुझ पर फजल हुआ। क्यों फजल हुआ? क्योंकि खुदा का कलमा उसके बाथन में उतरने वाला था। हालेलुया। ये फजल ने क्या किया है कि इंसान कमजोर था, इंसान वापस नहीं जा सकता था, उसके लिए रास्ते बंद हो गए थे, इंसान के अंदर ये काबिलियत खत्म हो गई थी खुदा तक वो रसाई कर सके, इंसान के अंदर हिम्मत है ही नहीं थी कि वो खुदा तक जा सके। वो तो इंसान देखे अगर कुर्बानियां भी चढ़ाता था तो वो कुर्बानियों के पीछे छुप के, काहिन भी जो था जब पाक मकाम में जाता था तो उसने आगे क्या लगाया होता था? जानवर जो उसकी सजा बर्दाश्त करेंगे, वो कुर्बानियां उसके आगे होती थी, अंगूठों पर खून होता था, नाखूनों पे खून होता था। जब कहानत का कुड़ा निकलता था पूरा साल पकीज़गी के अंदर कोई सोचना नहीं, कोई देखना नहीं, बोलना नहीं, बंद कमरे में बैठ जाता था, मैंने पाक तरीन मकाम में जाना है, कहीं मेरी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा भी गुनाह हुआ तो कहीं मैं उस पाक तरीन मकाम में मर ना जाऊं। और किसी की जुर्रत नहीं थी उस मकाम में कोई लाश भी निकाल सके। है रस्सियां बांध के भेज दिया जाता था, जरूरत ही नहीं थी ताकि इन्हें खिंचिया ही जाए, है मर जाएगा तो कोई गुनाह होए तो इन्हें फिर खिंचो। ये नहीं को डरते हुए कोई ऐसे झांक भी नहीं सकता था, बस उसको घुंघरू बांध दिए जाते, भिल्ले बांध दी जाती, पा बल्ला बजदियां रहनी चाहिए ताकि पता लगे तू जिंदा में है। कोई झांक के भी पर्दे के पीछे नहीं दे सकता था। इंसान को निजात की इसलिए जरूरत थी क्योंकि निजात जो है उसे खुदा से मिलाती है। आज निजात याफ्ता खुदा ना कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं निजात याफ्ता हूं। ये कौन सी निजात है? अगर निजात पाने वाला शख्स खुदा की हुजूरी में वापस चला जाता है। हालेलुया। वो खुदा की खुलफत में चला जाता है,
वो खुदा के शिकायमा के नीचे आ जाता है, वो खुदा के हाथ के नीचे आ जाता है। और इंसान जो था, ना उसके पत्ते, ना उसके बुर्ज, ना उसके मजहब, ना उसके दीन, ना उसकी मिठाइयाँ, ना उसकी रासबाजी, ना उसकी नेकियां, कोई चीज भी हमें खुदा तक नहीं लेकर जा सकती। पर खुदा का शुक्र हो, दरमियानी एक ही है, और वो खुदा का कलमा, खुदा का बेटा, निजात हिंदा, शाफी आजम, जिसने कहा मैं जिंदगी हूँ, मैंने कब्र और मौत पर फतह पाई है, और यीशु ही निजात हिंदा है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए, आसमान के तले, जमीन के ऊपर एक ही नाम बख्शा गया है, और वो नाम कौन सा है? मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का। हालेलुया। निजात हिंदा। और निजात हम कैसे पहनते? याद रखिए, ऐसी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਜਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਖੁਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਹਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ नहीं कर सकता। अब फजल क्या करता है? फजल वो करता है जो इंसान नहीं कर सकता। यीशु देखिए, फजल और सच्चाई, फजल के साथ सच्चाई, इसके साथ फजल के साथ। अब सच्चाई क्या है? खुदावंद और यीशु ने क्या कहा? तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें क्या करेगी? अब फजल क्या होता है? क्योंकि इंसान तो खुदा तक नहीं पहुंच सकता था, खुदा तक रसाई नहीं कर सकता था। इस फजल ने क्या किया? इसने इंसान की नाअहली को खत्म किया। क्या किया? पहला काम की किया? जेड़े होते ना, नो लगा सी ना, नो एंट्री, पहला है बोर्ड हटाया गया, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टैंडर्ड। फिर इसको नो हटाने के बाद फिर इसको सच्चाई दी गई, और वो कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। यानी इंसान जेड़ा सी वो अपने अंदर ते जरूरत नहीं रखता, पर ओनू एक ऐसा लिबास देता गया, एक ऐसी रासबाजी दे दी गई जी उन्हें कमाई नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह सी। आमीन। क्योंकि वो इंसानी सूरत दे विच इसे तो आया सी ताकि इंसान ओनू पहन ले के खुदा तक पहुंच जाए। हालेलुया। आमीन। यानी निजात फजल दे नाल है और सच्चाई दे नाल है। आमीन। ते दोनों काम किदन हो रहे ने? क्रिसमस वाले दिन। आमीन। इस तो क्रिसमस की है खुदा दी चाहत, चाहत की, खुदा की चाहत क्या है? बोले बोले, सब आदमी और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। इसलिए यीशु आया है ताकि हमारी गुमराही खत्म हो जाए। हालेलुया। एक नवा इंसान सामने बनकर आया। आमीन। क्योंकि पुराने आदम में हमें पुरानी इंसानियत मिली थी, पुरानी फितरत मिली थी। पुराना इंसान में से हम निकले ना जब, तो पुरानी इंसानियत थी। पर याद रखिए, एक फिर बिन आदम आ गया, और वो खुदावंद यीशु मसीह था, और वो नया था, वो रूहानी था, और हमें नई इंसानियत मिल गई है। हालेलुया। क्रिसमस असल में नए कपड़े नहीं, नई इंसानियत का नाम है। हालेलुया। क्रिसमस नए निजात के कपड़ों की। आमीन। इसलिए ही अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने